Sure, let's continue. So what we have studied, differential equations of order 1 and of degree 1. Now the segment 2 that you call chapter 1.2. Chapter 1.2. 1.1 was differential equations of order 1 and of degree 1. Chapter 2 is of differential equations of order 1 and not of degree 1. This is very important chapter for us, CSE as well as forest services. Damn sure you will have questions from this segment. So for this lecture, as we are in the continuation of doing the first order to finish, the first thing is for me, this chapter is basically of more of practice with special attention on the questions जहाँ पर you will have कि how to proceed now. लेट्स से आपने कोई मेथड पढ़ लिया, उसके बाद उसका जो प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बोल रहा था कि केवल मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, नॉट श्योर. थिंग इज until unless you do not practice those questions, you will not realize कि मैं कहाँ पर फंस सकता हूँ. So for this particular chapter, I suggest you to do each example of MDR. ठीक है, differential equations of first order but not of first degree. Each example you have to solve. ठीक है, solve each example. इसके बाद example के सामने mark star at steps of solutions कि where you find something like extraordinary, or you can say something which is not, if you do not solve those questions you cannot grasp that. So please do notice this point, please dear. Okay, chale. Next, when I say differential equations, these are represented by like this, or function of x by p. Here p is a special notation for dy over dx, right? So whenever you have, actually this is some standard notation. So in the question it may be many times they will say कि dy upon dx is p or p is dy upon dx, but here like in many of the books you will find this is a general notation for that. Fine. Our target is to solve such differential equations. Why this is differential equation? Because it involves derivative. This may be function of dy upon dx, तो हो सकता है dy upon dx का पावर कुछ हो, dy upon dx खुद किसी का फंक्शन हो. That is why we represent that like this. For example, इसको यहाँ से करते हैं हम लोग. ठीक है बच्चे, तो आई होप अभी आप मैसेज मेरा समझ गए कि आपने करना क्या है इस चैप्टर में. हर एग्जांपल सॉल्व करना है, एक एक स्टेप पर देखिए कहाँ आप फंस सकते हैं, उसको नोटिस में ले लेना है. ठीक है, सो लेट्स से आई टेक द एग्जांपल 1 की सॉल्व p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल्स टू 0, वेयर p is nothing but dy over dx equals to 0. If you observe here कि this is nothing but dy upon dx का square, so its degree is not 1. Clear? So this type of differential equations comes under this category. Okay? So इसको बोलते हैं, अभी देखिए, this can be written as p square minus 3p. just factorize कर दिया, quadratic in p है, p बाहर ले लिया तो p minus 3 minus 2, p minus 3 equals 0. Ultimately I have a into b equals 0. Then either a is 0 or b is 0. p is what?
dy over dx minus 3 equals 0, dy over dx minus 2 equals 0. This is nothing but dy over dx equals 3 or dy equals 3 dx. This is dy equals to 2 dx. On integrating, we get y equals 3x plus c, where c is what bache? Arbitrary constant. From here we got y equals 2x plus c, where c is what? Arbitrary constant. Don't take c1 and c2 different arbitrary constants here because this is a differential equation of order 1. So its general solution will contain exactly one arbitrary constant. So on combining this, general solution of given differential equation is by minus 3x minus c into c by minus 2x minus c equals to 0. Why the solution is like this? That is confronted here. कोई दिक्कत किसी को? चलिए, the case may be whenever you have differential equation like this, तो हो सकता है वहां पर x y इन्वॉल्व हो, केवल p इन्वॉल्व हो, all इन्वॉल्व हो. So what happens here? We have two type of like problems. Type of problems पे पहले अपन जाते हैं, ठीक है? नंबर फर्स्ट, पहले में क्या है? टू सॉल्व सच डिफरेंशियल इक्वेशंस वी नीड टू नो, अभी अपने पास व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं अपने पास? थैंक यू. देखिएगा, गिवन phi of x by dy over dx equals to 0 is solvable for p. What does this mean actually? This means कि you may have p equals something. P equals something. So by putting p की जगह dy over dx and by usual methods which we have discussed in the previous segment कि how to solve first order differential equation. यहाँ से तो ये linearity में convert हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है this is a linear differential equation. आप non linear से linear differential equations में ले आए and there you applied your methods. तो अभी यह क्या होगा? You can solve and your general solution will be given like this. नंबर फर्स्ट पॉसिबिलिटी. नंबर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यू जस्ट मैनेज्ड एंड यू फाउंड कि इट इज सॉल्वेबल फॉर एक्स. सॉल्वेबल फॉर पी मीन्स दिस इंप्लाइज कि यू कैन हैव एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ बाई एंड पी. Fine. Suppose that you have quadratic equation in x, so you can write x equals, fine, or you may have the case solvable for y. Okay बच्चे? So when you have solvable for y means you may have a case solvable for like this. अब देखिएगा how to proceed in two cases, because this already I have told you how to proceed in this case or this case. Let's say this is my equation 2 and this is my equation 3. So इसको मैं नंबर इसको दे देता हूँ A case, B case and this is C. For the case A, what you have actually? X equals some function of y and p. Please learn the procedure here. Differentiating with respect to y.
प्लीज नोटिस, अगर ये वाला होगा तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, dx अपॉन dy काइंड ऑफ फैक्टर। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर आप इसका इस फॉर्म में हैं तो आपके पास डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के बाद क्या फैक्टर बनेगा, dy ओवर dx काइंड ऑफ। हियर you can replace this by 1 upon p, this can be replaced by p, means you have some equation in p and by, क्या बच्चे, इक्वेशन इन p and by, यहां पर क्या मिलेगा, इक्वेशन इन x and p। सॉल्विंग इट वी कैन गेट y, यहां पर p कंटेन हो सकता है, ठीक है, y कंटेनिंग p, ओके। यहां पर क्या मिल जाएगा, x कंटेनिंग p। कब बच्चे, बाय इंटीग्रेटिंग और बाय सॉल्विंग दैट इक्वेशन। फाइन। अभी क्या करेंगे, और दूसरा चीज ये भी होता है, अब यहां से बाय मिल गया, यूजिंग, अच्छा यहां से हम क्या कर रहे थे, बाई p मिलेगा, तो यूजिंग बाई इन गिवन रिलेशन और इक्वेशन गेट x इक्वल्स। फाइन। प्लीज नोटिस यहां पर यूजिंग इन गिवन इक्वेशन गेट y इक्वल्स। ओके बच्चे, if you have noticed कि here this may contain p, this may contain p, so ultimately when you write the general solution, please focus and mark star here, how to write general solution of either 2 or 3 form of differential equation। सो इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं इसको नंबर दे दूं कुछ 5, 6, तो बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज गिवन बाय 5 and 6 इन पैरामीटर p, in parameter p। please notice these word and do remember, don't forget to attach। Getting? So in these differential equations you may have these 3 cases। फर्स्ट केस में हाउ टू राइट द जनरल सॉल्यूशन, सेकंड एंड थर्ड में हाउ टू राइट द जनरल सॉल्यूशन। प्लीज डू रिमेंबर। ओके, कोई इशू? अभी what I do is just I take an example to make you feel कि things are not that much tougher। Actually one thing I want to make clear here कि that when you solve examples you may have struck here, ठीक है? Please notice this point। And thing is, after attending this lecture, don't forget to solve questions। I'm again saying don't forget to solve questions। आप कहाँ फंसेंगे उसका आइडिया मुझे है। So just making this online learning as very effective, I'm just focusing on those terms where you will be stucking off। So number first thing, you may stuck here, second thing you may stuck here। if you stuck here then there is no shortcut, this will be removed if you solve all those examples of MDR Shingania and you are in the practice की ओके क्वाड्रेटिक इन p हो गया, क्वाड्रेटिक इन x हो गया, हाउ टू राइट x, कौन सा फैक्टर ओमिट करना है। अभी मैं क्लैरिट में आऊंगा। अभी मान लो यू हैव सम फैक्टर्स, जैसे a इंटू बी मैंने अभी लिखा था, कहीं पर मेरे पास ये होता 3 - 2 by
into 3 minus 4p equals to 0. अभी I will not take this as 0. Although I know a into b. फोकस करना है यहाँ पर, जो लोग सॉल्व कर चुके हैं उनको एहसास हो रहा होगा. This cannot be 0. Why? Because this does not contain p. और जब डेरिवेटिव p is what? dy over dx. जब डेरिवेटिव ही नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से जाएगा? दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट. क्लेरेट में तो इसको बार बार यूज किया जाता है, यहां पर भी मैं आपको बोल रहा हूं वेन एवर यू हैव सम फ्रैक्शंस लाइक दिस देन चेक कि वेदर p इज प्रेजेंट और नॉट. इफ इन सम फैक्टर p इज नॉट प्रेजेंट देन ओमिट दैट, लीव दैट, सॉल्व दिस ओनली. क्लियर? चले, इसमें एक इंटरेस्टिंग केस आपके लिए बनेगा क्लेरट्स. एक्चुअली अभी मैंने जितना आसानी से आपको बता दिया, व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ऑल दीज 3 पॉसिबल केसेस यू विल रियलाइज कि दोज नीड्स एफर्ट एक्चुअली. फाइन. सो द इंटरेस्टिंग केस इज क्लेरट. चलो, और इसके बाद इसमें जो मोस्ट मतलब लाइक इंटरेस्टिंग केसेस हैं वो क्लेरट्स और सिंगुलर सॉल्यूशन ही हैं, एंड फ्रॉम देयर ओनली दे आस्क क्वेश्चंस. फाइन. अभी देखिए, सपोज क्लेरट्स फॉर्म एक स्पेशल फॉर्म है व्हेन योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म. ओके, if some given differential equation is of this form then that differential equation is said to be in Clairaut form. Fine. So what you do, यहाँ पर is क्या होता है कि to solve या फिर to get the general solution of 1 replace p y c where c is some arbitrary constant. ओके बच्चे, फोकस. सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 मुझे क्या मिल जाएगा? y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी. फाइन. दैट इज वाई. अभी पीछे केसेस में अपने ने क्या किया था, उसको सॉल्व कर रहे थे, इधर सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर p. नाउ इफ इट इज इन दिस फॉर्म देन आई कैन डू लाइक दिस एंड दिस इज नॉट दैट मच टफ. अभी देखिएगा, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं इसकी बात करूं, ये c से रिप्लेस क्यों किया जाता है ना? Although the trend is being shifted, so such questions are always expected. तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो नॉर्मली आप लोग मिस कर देते. अरे यार चाय ठंडी हो गई, मैंने चाय मिस कर दी. तो अभी देखना, मैं इसको कोशिश करता हूँ. डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा मुझे? dy अपॉन dx इक्वल्स फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स. डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? p ध्यान देना, इस प्रोसेस में भी कुछ छुपा हुआ है इसलिए बता रहा हूं. p गॉट कैंसिल्ड, dp अपॉन dx बाहर आ जाएगा, अंदर मिल जाएगा x प्लस एफ डैश p इक्वल्स 0. Now if a into b is 0 then either a is 0
और b is 0. So here what the factor will be 0? इधर से तो अपने को dp है नहीं तो मिलने कुछ जा नहीं रहा है, डेरिवेटिव नॉट प्रेजेंट, सो इसको तो 0 ले नहीं सकते क्योंकि वी आर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या लेंगे 0, और यही मैं थोड़ी देर पीछे बता रहा था आपको. दिस इंप्लाइज, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dp इक्वल्स 0. So p equals, on integrating, p equals some arbitrary constant. बस हो गया. और if I am not teaching you like this, then if they ask question, I'm damn sure you will not be able to solve such things. Getting? और मुझे पता है कि आप इन्हीं चीजों पर फंसते हैं, वही मैं हिट करते जा रहा हूं आपको. Getting? So end of the lecture, you need to remember कि if some differential equation is in this form, then we need to replace p by c to get the general solution of that differential equation. Now we are interested in knowing what happens if given differential equation is not in Clairaut form. Very important, mark star here. You will observe PYQs, previous year questions from CSE as well as Forest Services. Definitely you get questions from there. And why those are important? चलिए, यहां पर है क्या, तो इसको बोलते हैं reducible to Clairaut forms. Fine. Differential equations reducible to Clairaut form. यहां पर 3 important cases are there. ठीक है. इन 3 के अलावा भी some other cases. Please focused here. Some other cases. In all these cases, need to remember the form of differential equation and substitution to reduce that into Clairaut's form. मैं आपको एक फॉर्म यहां पर करके दिखाऊंगा, उसके बाद यू विल बी कंपैटिबल विद दैट. Let's take some example over that. Solvable Clairaut. Okay, case 1, very important. I am saying e raised to the power b by a minus bp equals some function of p into e raised to the power by minus ax. तनाव नहीं लेना है. Thing is, if your some differential equation given in this form, then how to reduce? तो यहां पर आपको जो याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो होगा पुट e raised to the power ax as some variable u and e raised to the power b by, याद कर लीजिए, e raised to the power b by a minus bp. आसान है. फंक्शन ऑफ p इंटू e raised to power b by minus ax. ये प्लस माइनस पूरा गौर रखिएगा, नहीं तो बाजा बच जाएगा आपका. ठीक है. If you don't remember such substitution, then what would follow? Clairaut में आप रिड्यूस कर नहीं पाएंगे उसको,
then you will solve by usual methods, and usual method may be very much cumbersome in nature. The current pattern of mains optional, this mathematics optional is very much in this direction only. पीडी में भी चारपिट वाले में जो लोग ने किया है उनको पता होगा. सो मैं इतने बार क्यों बोला यहाँ पर दोस्त, बिकॉज आई एम माइंड सेट मेकर्स फॉर यू. हमें पता है आप यहीं पर गलतियां करेंगे, तो यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना. इस फॉर्म को याद रखना, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा. इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म, देन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज टू थिंग्स दिस विल बी रिड्यूस्ड टू क्लियरेट. एक बार मैं करके दिखा देता हूं. अगर e रेज़ पावर ax को u लिया तो e रेज़ टू द पावर ax a इंटू डी एक्स डी यू, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा b e रेज़ टू द पावर बी वाई इक्वल्स टू डी वी. सो अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं, इसमें से इसको, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे मिल जाएगा, सो इट विल बी बी ई रेज़ टू द पावर बी वाई डी वाई डिवाइडेड बाई ए इंटू ई रेज़ टू द पावर, and that is nothing but dv upon du. This implies b upon a e raised to the power by minus ax equals dv upon du. देखो कैसा मजा आया आपको. क्या हुआ अभी, आ जाओ बच्चे. यूजिंग इन दिस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है यूज कर दो उसमें. e रेज़ टू द पावर बी वाई को आपने क्या लिया है, v. a माइनस बी इंटू पी का वैल्यू क्या है, p आई एम सेइंग, p क्या है, dy. यहाँ का dy अपॉन dx कहाँ गया, इंटू dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन du. तो यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू बी है ना ये, a अपॉन, क्योंकि a को उधर भेज दिया, a अपॉन b, और ये हो जाएगा उधर में जाके e रेज़ टू द पावर ax माइनस बी वाई. तो e रेज़ टू पावर ax तो हो गया u, है ना, अपॉन e रेज़ टू पावर बी वाई हो गया b इंटू डी वी अपॉन डी यू. मैंने क्या किया, यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू in terms of dv upon du यहाँ रख लिया, and that is nothing but function of p into e raised to the power by minus ax. p is what, dy upon dx. so means यही तो लिखा है. तो क्या मिल जाएगा मुझे, function of a by b into dv upon a by b, just constant only. अब इसको चेक कर लो मेरे बच्चे. b से v गॉट कैंसल्ड, यहाँ से a बाहर आ जाएगा, है ना, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से, देखिएगा इस चीज को, v इक्वल्स, ठीक है, dv अपॉन d को कुछ मान लो, कैपिटल P मान लो. सो p इंटू u प्लस सम फंक्शन ऑफ कैपिटल P. Please check it out. So with the help of these substitutions, this differential equation converted to b equals pu plus some function of p, where p is what बच्चे, dv upon du. Now this 2 is in Clairaut form. Now 2 is in Clairaut's form. तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, अब वेरिएबल्स क्या हैं, v u. सो v इक्वल्स c u प्लस फंक्शन ऑफ c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. v किसको लिया था आपने, देखिए यहां पर e रेज़ टू द पावर बी वाई, u किसको लिया था, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. किसी को भी कोई डाउट है तो बोलेंगे.
स्टार्ट क्लियर। अब आप देखिए आपको करना क्या है। ऐसे ही आप केस 2 देखेंगे, उसमें भी एक में एक्स स्क्वायर को यू मानता है, एक में वाई स्क्वायर को वी मानता है। प्रोसेस जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए एक बार। सब्सटीट्यूटिंग एक्स स्क्वायर अगर यू मान लिया, वाई स्क्वायर वी मान लिया, सो 2x dx इज डी यू, 2y dy इज डी। बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना। यहां से dy अपॉन dx को इन टर्म्स ऑफ dv अपॉन du, u एंड v निकाल दीजिए और जस्ट उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दिस इज अनदर केस, केस 2। ओके, समटाइम्स दे मे पुट केस 3, log x इक्वल्स टू u और y को सेम लेके चल लेंगे। मीन्स सच सब्स्टिट्यूशंस, प्लीज फोकस ऑन माई वर्ड। MD राय सिंघानिया के all examples, I'm saying all examples you need to solve more than 2 times. Otherwise you will not be able to cop up in the exam hall. मैं आपको बता रहा हूँ ना, persons who wrote 2 to 3 mains, even they got jumbled up in the exam कि यार कौन सा substitution लेकर चलना है। So here सच सब्स्टिट्यूशंस आर 2-3 तो हम याद रख लेते हैं, लेकिन बाकी सुनिए ध्यान से। अब रेस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस व्हेन यू प्रैक्टिस दोज एग्जांपल्स, प्लीज एक चार्ट बना लीजिए वहीं पर। आप हर एग्जांपल, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है कि मास्टर इतना रटवा रहा है और रटने को है, नहीं रटना है तो मत रटो, फंसोगे एग्जाम में। यूजुअल मेथड से करने गए तो 1 घंटे में भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। So please do notice my these words. I have enough done for you. अभी इन substitution से you will have definitely questions, और यहीं पर नहीं, इसके आगे जब मैं singular solution बताने जा रहा हूँ वहां पर भी maximum of the cases they give you differential equation in some form which is reducible to clear-cut, क्योंकि singular solution निकालना itself is a game. So what they do is they give you some differential equation which can be reduced to clear-cuts, and by finding the general solution फिर singular solution निकालना आसान हो जाता है। So what I can observe, they may ask you questions over here. So एक बार फिर से बोलूंगा मैं, ये सब्स्टिट्यूशंस को प्रैक्टिस करना है और एक चार्ट पर, केवल MD राय सिंघानिया के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एक चार्ट पर जरूर बना लीजिए। एंड ऑफ द डे 1-2 बार उनको देखते रहिए, सो दैट दिमाग में रहे कि यार एक सब्स्टिट्यूशन log x भी होता है, एक सब्स्टिट्यूशन 1/x भी u करता है, क्या पता इससे हिट कर जाए। और बिलीव मी, व्हेन यू सॉल्व ऑल दोज एग्जाम्पल्स तो आपको एक इंट्यूशन आने लगता है कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम करेगा। That's what I can suggest, क्योंकि those things I felt। आगे बढ़ो अभी, चले। The next interesting part is singular solutions. So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि singular solutions की बात करूंगा मैं, not of first degree में, तो अब हम singular solutions की बात करते हैं। Just try to recall what I told you for singular solutions. Solution which does not contain any arbitrary constant. What I am saying? Solution which does not contain any arbitrary constant and is not a particular solution. That is known as the singular solution of that differential equation. फिर बच्चे चल हो, इसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी तो छोटा है, बस यहीं पर थोड़ा सा मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। सिंगुलर सॉल्यूशन, a solution, please note down the definition, which does not contain C भी नहीं होगा and not a particular solution. Clear? That is called the general solution. यहां पर एक वर्ड आपको मिल सकता है envelope. Fine. So differential equation में there is a chapter
envelops and evolutes. How to find envelope, okay, how to find envelope for some given curve. अब ये होता क्या है, this is nothing but a curve which touches every member of some given family of curves. ये वर्ड मेरा याद रखना, you will feel कि मैंने कुछ सिखाया आपको. एनवेलप क्या होता है, एक ऐसा कर्व है जो गिवन फैमिली ऑफ मेंबर्स, लेट्स से what I can told you is एक सेकेंड, ओके, लेट्स से एक्स स्क्वायर plus y square equals to c square, where c is some arbitrary constant. So this is what? Family of concentric circles. So abhi you need a curve which touches every member of this family. Abhi I think you got the idea. Why that envelope I have been teaching you here? When you try to find singular solution, these are nothing but envelopes only which satisfy given differential equation. Okay? Focus on this word. ऐसा नहीं है कि सारे envelopes आपने find किए और वो सारे singular solution बन जाएंगे. No. Mark star here. Which एक बार आपको क्रॉस चेक जरूर करना होगा कि वो जो एनवेलप आपने फाइंड किया है, एनवेलप फाइंड करने के अपने तरीके होते हैं, कैलकुलस में आप सीखते हैं उसको, उनको यहां अप्लाई नहीं करना होता है, केवल एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं उन मेथड्स में नहीं जा रहा हूं जानबूझकर. ठीक है? सो इफ यू ट्राई टू फाइंड एनवेलप out of that which satisfy given differential equation, then that solution will be known as singular solution of that differential equation. So please mark star here. Don't forget to cross verify कि envelope में से कौन सा solution बनने जा रहा है. Means जो envelope मिला है उससे satisfy करा के जरूर देखिए given differential equation को. Fair? चलिए अपने सिलेबस या कहें तो PYQs को अगर आप चेक करेंगे, सो देयर इज अ स्पेशल केस. व्हाट स्पेशल केस? इफ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय c स्क्वायर some function of x by plus c into some function of x by plus some function of x by equals to 0. देखिएगा, लेट्स से अभी आपने जनरल सॉल्यूशंस लिख रहे थे और वहां पर मान लो आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिला y इक्वल्स सी एक्स प्लस सी स्क्वायर. So this can be written as c square plus x into c minus y equals to 0. This means quadratic in C. Please focus this word. जनरल सॉल्यूशन मीन्स अपने सिलेबस के लिए मुझे क्या सीखना है? सबसे पहले तो द फर्स्ट वी नीड टू गेट द जनरल सॉल्यूशन टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन. सो दैट इज योर स्टेप 1. आफ्टर फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन, if that differential equation is quadratic in C, where C is arbitrary constant, then its singular solution will be given by putting b square minus 4ac equals 0. b square और 4ac मैंने क्या लिखा है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में देखूं, स्मॉल c स्क्वायर प्लस एक्चुअली AC स्क्वायर प्लस BC प्लस इसको मैंने कैपिटल A लिखा, इसको मैंने कैपिटल B लिखा, कैपिटल C.
This is quadratic equation in small c. So if you have quadratic equation in small c like this, then its envelope, क्या बच्चे, envelope is given by b square minus 4ac equals to 0. अब b में क्या आएगा बच्चे, कोई फंक्शन ऑफ x बाई ही तो होगा. c क्या है, कोई फंक्शन ऑफ x बाई ही तो है. a क्या है, सम फंक्शन ऑफ x बाई ही तो है. सो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग, क्या मिलेगा आपको, सम फंक्शन. अब मैं इसको किस से डिनोट करूं, g ऑफ x बाई इक्वल्स टू 0. यहां पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या, नहीं है. क्या ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब होता, व्हेन आई गिव सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. वो तो मैंने किया नहीं यहां पर. अब यहां से अ फैक्टर और फंक्शन विच सेटिस्फाई, यहां स्टार मार्क कर लीजिए, बस टीचर इसी के लिए आया है आपके लिए. ए फैक्टर विच सेटिस्फाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. यहां से आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना होगा, क्रॉस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके. दैट इज नोन एज सिंगुलर सॉल्यूशन. कोई डाउट किसी को भी, क्लियर है, कोई इशू किसी को. अब बोले सर झूठ मूठ का सवाल कर दीजिए, हमको अच्छा लगेगा. नहीं अच्छा लगने देंगे. मुझे पता है आप कहाँ जाके फंसते हैं, और ये सवाल ही हो रहे हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ लाइक 2013-14 टीचिंग ईयर्स. देन आई यूज्ड टू सॉल्व, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि कहाँ फंसेंगे जाके. अब इतना साल पढ़ाने और एग्जाम देने के बाद मुझे ये एहसास है कि अच्छा यहाँ पे फंसते हैं. तो इसीलिए ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो है इतनी इफेक्टिव चल रही है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज टीचर नोज वेयर टू हिट. अब बाकी इसके बाद अगर इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस तो कुछ होना जाना है नहीं. इफ यू प्रैक्टिस देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम हियर. गेटिंग? So I'm in that mindset still. If you think कि सर प्लीज डू सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो उसके लिए I will take, जैसे मैं लेता हूँ ट्यूटोरियल क्लास, उसमें मैं प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी फटाफट आपको करा देता हूँ. ठीक है, चलिए. सो सिंगुलर सॉल्यूशंस इज ओके. कोई डाउट किसी को? अब इस फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, MD राय सिंघानिया के जो एग्जाम्पल्स हैं, हर एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखना है. रीच टिल द फाइनल आंसर. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए. सो वन मोर इंपॉर्टेंट सेगमेंट हियर. अच्छा, एक चीज और है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. जस्ट मैं उसका स्टेटमेंट बोलूं, अगर आप MD राय सिंघानिया पढ़ रहे होंगे, एक चैप्टर है आपके पास, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. इसका स्टेटमेंट यह है कि dy ओवर dx इक्वल्स टू f ऑफ x बाई विद सम इनिशियल कंडीशन y एट x नॉट. सुन लीजिए इसको. हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ f एंड डेवर f ओवर डेवर बाई बोथ आर कंटिन्यूअस, obviously in the given domain. Okay, what I suggest you people, what PDF I have provided you, there is a segment existence and uniqueness theorem. आप MDR में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट करते जाएंगे आप. ठीक है, सॉरी, I suggest you to go through this question. I'm sorry, अब लंबा हो रहा है ना. 15 क्लासेस का कंटेंट ऑलमोस्ट डिलीवर्ड. 15 क्लासेस, ईच ऑफ लेक्चर 2.5 hours, है ना. सो dy अपॉन dx इस फॉर्म में अगर है तो उसके लिए आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है. तो आई सजेस्ट यू एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में आप उनके क्वेश्चंस को जरूर करके देखें. और एक नोट में यहाँ पर आपको जरूर बोलूँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कहाँ गया,
which do not satisfy EUT, इसको शॉर्ट में EUT भी बोल देते हैं, those may have unique solution, no solution, infinitely many solutions. Although this chapter is very much interesting, but in case of UPSC, I don't think कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक करते हैं. हाँ, in future they will start. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो PDF क्लास नोट्स वाला हैंड रिटन, उसका EUT वाला सेगमेंट आप ज़रूर पढ़ें, ये मेरे सजेशन है आपको, ठीक है. लिप्स्टिट्स कंडीशन भी उसके अंदर है, चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो इतना एनफ होगा. इसका मतलब है कि सपोज दैट f एंड डेवर f ओवर डेवर y का कंटिन्यूटी फेल करता है, किसी एक का भी करता है, तो डोंट से, प्लीज मार्क स्टार, डोंट से कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन. नो, because this EUT gives the sufficient condition, not the necessary. है बच्चे, sufficient but not necessary. If suppose that डेवर f over डेवर y का कंटिन्यूटी फेल कर गया, तो डोंट से कि दिस डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन. नहीं, इन दैट केस if it fails you need to solve the given differential equation. What बच्चे? You need to solve the given differential equation. कोई दिक्कत किसी को भी? Fine. Solution कैसे होगा? Those usual 4 methods which I told you, first order के. So please read this chapter also. First order में ही एक important segment और है हमारे पास, that is ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज. टाइम क्या हुआ है? 5:15. मैं जल्दी से इसको समराइज करता हूं क्योंकि अगला लेक्चर होगा 5:30 को. ट्रेजेक्ट्रीज में मुझे जो बोलना है वो मैं बहुत फटाफट आपको बोलूंगा. चलिए, होता क्या है, एक वर्ड होगा आपके पास ट्रेजेक्ट्री. सो ट्रेजेक्ट्रीज क्या होता है, ध्यान से देखेंगे इसको जल्दी से. दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स which touches or cuts a given family of curves according to some given condition or rule. फेयर बच्चे? क्या बोला कि ए फैमिली ऑफ कर्व्स, प्लीज फोकस, फैमिली कब आएगा? जब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तभी तो एक से ज्यादा उसमें मेंबर्स मिलेंगे आपको. सो ए फैमिली ऑफ कर्व्स विच cuts some other given family of curves according to some given condition, then this family is called trajectories for the given family. बस यही मुझे आपको समझाना होता है, बाकी तो रट्टा मार जिंदाबाद है ही. फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू एम एक्स. ओके, दूसरा मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहां a जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां पर m जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. मींस दिस इज अ फैमिली ऑफ straight lines passing through origin. This is family of circles centered at origin with arbitrary radius a. Means this is, suppose that this is y equals to x, this is y equals to minus x, this is y equals to minus 2x. Clear? These are circles. ओके, सो अभी मैं इन दोनों को कंबाइंड अगर करूं, गेटिंग? सो व्हाट आई एम सेइंग कि दिस फैमिली cuts this family
at some particular angle, and if I find suppose that this is y equals to mx, तो इसके लिए मैं dy upon dx लिखूं, इसके लिए मैं dy upon dx अगर लिखूंगा तो ये मुझे ये हो गया 0 माइनस का x upon y, ठीक है। सो इसके लिए dy upon dx लिख लिया, इसके लिए dy upon dx लिख लिया, एंड इफ आई सॉल्व 1 and 2 to get the point of intersection, please notice, to get the point of intersection of y equals to mx and x square plus y square equals to a square, क्योंकि हम जानना चाहते हैं ना, लेट्स से एट दिस पॉइंट ये लाइन इस सर्किल के हर फैमिली के मेंबर को कहां पे कट कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए होगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सो यू विल गेट x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इफ x का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स लिखा, ठीक है, प्लस माइनस मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो x का प्लस के साथ में कोऑर्डिनेट, और वहीं इसका जो नेगेटिव वाला पॉइंट होगा वो माइनस वाला कोऑर्डिनेट रखेगा, क्योंकि यहां पर y नेगेटिव, यहां पर y पॉजिटिव। So at these points P and Q, you can observe, class, at points, एक मिनट बस, P and Q, observe that इसका जो लेट्स से दिस इज m1, इसका स्लोप, इसके लिए इसको मैं m2 बोल दूं, you will be getting as dy upon dx for the first curve, first family into dy upon dx of the second family, by at putting these x and y you will be getting as -1. So what it is condition represents, ऑर्थोगोनैलिटी। सो यहां पर क्या हो गया कि दिस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी तो है बट कैसा है, ऑर्थोगोनल, फाइन। अब यही पाई बाई 4 का ट्रेजेक्टरी हो सकता है, उसको ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, फाइन, कोई दिक्कत किसी को। सो अभी क्या करना है, 5:30 को नेक्स्ट लेक्चर है, सो आई विल हैव टू समराइज दिस लेक्चर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहां से केवल इतना याद रखिए कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होते हैं, ठीक है। टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो स्टेप 1 क्या होता है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, देन रिप्लेस dy ओवर dx बाई माइनस का 1 अपॉन dy ओवर dx। क्यों, क्योंकि उसी केस में इसका dy अपॉन dx गिवन फैमिली का, दूसरे का dy अपॉन dx जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग एज -1। सो dy upon dx for the first family and dy upon dx for the second family, this I need as -1. So to get the second family, what I do, I replace in the differential equation here, very much important, एक लैम्डा वाला क्वेश्चन आपको MDR में दिखेगा, वहां डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कराने के लिए आपको थोड़ा मगजमारी, आपको एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं। सो टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन यू नीड टू रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। After removing arbitrary constant in the present differential equation, you just replace dy upon dx by minus का 1 upon dy over dx. You will get a differential equation representing second family. By solving this differential equation, you will get the required family of trajectories. पोलर फॉर्म में अगर दे दिया तो उसमें क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना, यहाँ पर tan थीटा जो होता है या tan फाई से आप लिखते हैं, दैट इज r d थीटा अपॉन dr। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए गिवन कर्व का। यहां पर एक्सरसाइज जरूर कीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं ट्यूटोरियल लूंगा इसका, आई विल टेक ट्यूटोरियल फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज स्पेशली, क्योंकि मुझे ऑब्लिक भी आपको सिखाना था, बट ड्यू टू सम इसका दिस
टाइम का मैं आपको यहां से थोड़ा सा हिंट करके छोड़ता हूं। तो इन केस ऑफ पोलर फॉर्म यू जस्ट रिप्लेस आर डी थीटा बाई डी आर को माइनस का 1 r d theta by dr in the differential equation of given curve, given family of curves. By solving that differential equation you will get the required orthogonal trajectory. Here आप फंसेंगे मुझे पता है तो ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम कि आपको आर डी थीटा अपॉन डी आर टाइप का टर्म दिखाई दे ऑन फाइंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। क्लियर है अभी? सो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज में थोड़ा और इंटरेस्टिंग मैं क्रिएट कर सकता था ऑब्लिक ट्रांजैक्टरीज, लेकिन आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर हियर। आई गेस it's the most longest lecture for this lecture series, but I'm pretty sure how to proceed for this mathematics optional, because differential equations I don't want to put like इसमें मैं आपको इतना हिंट कर दिया हूं जहां जहां आप फंस सकते हैं, कहां प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे पता है आपको कहां फंसना है। तो इसीलिए इस लेक्चर सीरीज का एक उपयोगिता बनाए रखने के लिए आई हैव डिजाइंड कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक मैं ऐसे बता दूं आपको, क्योंकि काफी लोग उसमें कंफर्टेबल होते ही हैं तो उनको भी बहुत कुछ मिले, और जो ओवर कॉन्फिडेंट है उनको तो मैं कुछ दे नहीं सकता। ठीक है? So we'll meet in the next lecture for higher order differential equations. In that Wronskian वाला जो segment है, that is very much important, and I have designed that especially for you CSE optionals. So don't miss that. We'll meet in the next lecture. Good luck.